I stand today on behalf of my party, the All India Trinamool Congress, to participate in a discussion on left-wing extremism in India. It is richly ironic when today India, along with so many parts of the other parts of the world, is reeling under the terror of the right wing, when the West Asia crisis is enveloping the whole world, when this government has neither given us any answers as to what our Honorable Prime Minister was doing in Israel 2 days before the Iran-Israel war started, nor have the people of India been given any clear roadmap as to how our energy crisis is going to unfold. When queues are forming outside petrol station, when black marketeering of LPG cylinders is going on, when airfares have exploded because the ministry has removed the airfares cap, suddenly you're having a discussion on left-wing extremism. Why? Because this beleaguered government, and more specifically the Honorable Home Minister, wants to use this as an excuse to pat himself on the back. For the BJP MPs and their allies to stand up and say, look, how great is Mr. Amit Shah ji, sabko thok ke thanda kar diya. We are not stupid. Indians are not stupid. We can see this discussion and its timing for what it is, which is merely a diversion from what else is going on in the world and in India on the streets. Now, when we look at left-wing extremism in India, where did it start? It can be traced back to the peasant uprising in Naxalbari, in my state, in West Bengal, in the Siliguri area, 1967. It was a movement led by Charu Majumdar, Kanu Shannal, and Jongol Shantal. This gave birth to the CPI-ML, the Communist Party of India, Marxist-Leninist, in 1969, spread from West Bengal to other states, continues to this day. In 2004, the People's War and the Maoist Communist Center of India, the MCCI, merged to form the CPI Maoist Party. Now, what did Mao say? What had he said himself about guerrilla warfare? Mao had said, a guerrilla must move amongst its people in the same way that a fish swims in the sea. So what started as an agrarian uprising in a small corner of West Bengal gradually evolved into a major security threat for all of India, internal security, peaked in the late 2000s. When LWE was at its peak in 2011, approximately 180 districts, that's about 22% of the 800 districts of India, was under the grip of LWE. And there was a red corridor. This red corridor spread across central and eastern India. There was Chhattisgarh, Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Jharkhand, Orissa, Bihar, parts of Bengal. Over time, this corridor has shrunk significantly. Now it's contained to merely about 3 states, Chhattisgarh mostly, Jharkhand, parts of Maharashtra. Now this insurgency was led by guerrilla-style warfare. It was targeting police, civilian infrastructure, and civilians, led to hundreds and thousands of civilian deaths. But LWE, left-wing extremism, did not just happen overnight. It's not something that just came out of the earth. Its roots are socio-economic, its roots are political, exploitation of native lands, displacement of tribals, looting of natural resources which rightfully belong to tribals, historical neglect of poor and tribal areas by successive governments. Now, LWE cannot be viewed as just a law and order problem, and it cannot be solved as just a law and order problem. It is a far more complex problem, requires a multi-pronged approach. आज से 1 साल पहले हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सामने संकल्प लिया था, घोषणा की थी कि मार्च 31, 2026 तक हम ये जो माओवाद है, ये जो लेफ्टिस्ट वामपंथी टेररिज्म है, इसकी जड़ें जो है देश से उखाड़ फेंकेंगे। और आज इस सभा के द्वारा, इसके माध्यम से मैं हमारे गृह मंत्री जी को, हमारी सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये संकल्प सिद्ध करने के लिए उनकी बहुत सराहना करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी, उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की
समस्या हम उनके सामने आई तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने तीन पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है जो इन्होंने झोंक दी। और जब इसके अंधेरे में पूरी तरह से जो ये क्षेत्र है जो डूब गए, जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप और कलम होनी चाहिए थी उनके हाथों में इन्होंने बंदूकें दे दी। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जब पूरी तरह से उनका भविष्य खत्म कर दिया तो पूरी तरह से अंधकार में तो अपना हाथ झटक लिया। इनको रेड कॉरिडोर बोल के, नो गो जोन बोलकर जो है पूरे देश में बदनाम कर दिया। हम भी फिल्म इंडस्ट्री में हम सोचते थे कि इतने अच्छे जंगल हैं, वहां जाके कोई गांव की शूटिंग करते हैं, अच्छा कोई गाना बनाते हैं, लेकिन उस टाइम की जो व्यवस्था है वो क्या कहती थी? अरे ये जो आदिवासी लोग हैं ये बड़े ही उग्र होते हैं, ये देश के साथ नहीं रहना चाहते, वहां शूटिंग मत करिए। खुद की असफलता छुपाने के लिए इन्होंने पूरे देश से जो है आदिवासी समाज को इन्होंने आइसोलेट कर दिया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो वो रात ही है, सवेरा होना निश्चित है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी की सरकार आई और आज हम देखते हैं कि उन्होंने एक आदिवासी महिला को जो है वो राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों को जो है वो सशक्त किया और उनको सशक्त करने के बाद उन्होंने वो रेड कॉरिडोर, वो भयानक नो गो जोन को जो है वापस लिया, वहां पे संविधान स्थापित किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई सांसद हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। और खैर प्रधानमंत्री जी ने क्या विकास किया वहां पर, चाहे वो घर बनवाए हो, चाहे वो नल लगवाए हो, चाहे वो 70 लाख महिलाओं को 1,000 की मदद की हो, 21 किस्तों में 13,000 करोड़ दिए हो, या वहां पर जो है जितने भी काम किए हो वो मैं अगर शुरू कर दूं तो आज दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाए, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जो वहां पे डिजिटल पेमेंट्स हुई है उनका मैं बहुत ही ज्यादा सराहना करती हूँ। उससे जो नक्सलियों का जो वित्तीय नेटवर्क है वो टूटा है, जो वो वसूली का काम करते हैं वो टूटा है, जिससे वो खोखले हुए हैं। उसके साथ में सबसे सराहनीय काम जो किया है वो मैं कहूंगी विकास और विश्वास के साथ जो हमारी सरकार ने इसको जोड़ा है। उसके उपरांत जो है उन्होंने जो समर्पण की नीति अपनाई है, 8,000 से ज्यादा युवा जो हैं वो समर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े हैं, उनको 5 लाख की राशि और उनको रोजगार दिया जा रहा है। महोदय जी, मेरे पास कहने के लिए तो बहुत है लेकिन मुझे बहुत ही कम समय मिल रहा है। सदन के पास समय नहीं है। इस तरह की नीति हमने दोगो में भी अपनाई है और वहाँ भी बोर्डो में, आसाम में भी 10,000 से ज्यादा लोगों ने समर्पण किया है। और मैं अंत में अध्यक्ष महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में ये संदेश दिया है कि ये देश बंदूक की नोक से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जनता के विश्वास से चलेगा। फिर से मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद।